Good afternoon, students. Today I have come with my second video of this chapter, balance of payment, and in this video I'm going to make you understand the last two topics of this chapter, which are foreign exchange rate and types of exchange rate system. And first six topics of this chapter have already been explained by me in the previous video. Means these first topics, this and this, all these six topics I have already explained in my first video. So if you want to understand these six topics, you will have to watch my first video. Now in this video I'm going to cover these two topics, which are very important topic also of this chapter: foreign exchange rate and types of exchange rate system. So I'm firstly starting with the foreign exchange rate, meaning of foreign exchange rate. First of all, we'll try to understand that what is the meaning of foreign exchange rate. So this term foreign exchange rate is made of two terms. First is foreign exchange. First is foreign exchange. Okay, foreign exchange का मतलब क्या होता है? Foreign exchange means I have already made you understand this thing, that what is the meaning of foreign exchange when I was explaining the third chapter of Indian economic development. That time I told you that foreign exchange means foreign currency. Foreign exchange means foreign currency. All the foreign currencies like dollar, pound, yen, euro, these are known as foreign exchange. So foreign exchange means foreign currency, and the first term in foreign exchange rate is foreign exchange, and second term is rate. Okay, and rate means what? Price. So foreign exchange means price of foreign currency. The meaning of foreign exchange rate is very simple. Foreign exchange rate means price of foreign currency. फॉरेन करेंसीज का प्राइस क्या है, ये इसी को कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो इसका डेफिनेशन दिया गया, और सेकंड वाला डेफिनेशन, इट इज़ द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. डोमेस्टिक करेंसी के टर्म्स में फॉरेन करेंसी का प्राइस जो होता है उसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. जैसे कि एग्जाम्पल यदि कहीं पे लिखा हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़, मतलब यदि कहीं लिखा है $1 इक्वल्स टू ₹70, इसका मतलब क्या हो गया? टू परचेज 1 यूनिट ऑफ डॉलर, how many units of rupees will be required? 70 units of rupees will be required. It means to purchase 1 unit of foreign currency, 70 units of domestic currency. To purchase 1 unit of foreign currency, 70 units of domestic currency will be required. तो इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. फॉरेन एक्सचेंज रेट शोज दैट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल बी रिक्वायर्ड टू परचेज 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. एक्चुअली प्राइस का मतलब यही होता है, जैसे कोई बोलता है कि प्राइस ऑफ पेन, प्राइस ऑफ पेन, कोई बोलता है ₹5 है, इसका मतलब क्या है? टू परचेज 1 पेन वी विल हैव टू स्पेंड हाउ मेनी रुपीज़? ₹5. इसका मतलब एक पेन किसके बराबर है? ₹5 के बराबर है. ऐसे ही कोई बोलता है फॉरेन करेंसी का प्राइस, फॉरेन एक्सचेंज मीन्स प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी का प्राइस 70 रुपीज़ है. इट मीन्स टू परचेज 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. यहाँ पे फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर लिया गया है. हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल बी रिक्वायर्ड? 70 यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. डोमेस्टिक करेंसी हमारे कंट्री के केस में क्या है? डॉलर है. तो यही हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट. जैसे पेन का प्राइस 5 रुपीज़ है तो हम लिख सकते हैं 1 पेन इक्वल्स टू ₹5. मतलब 1 पेन परचेज करने के लिए, या टू गेट 1 यूनिट ऑफ पेन, हाउ मेनी रुपीज़ वी विल हैव टू स्पेंड? वी विल हैव टू स्पेंड ₹5. लाइकवाइज फॉरेन एक्सचेंज रेट यदि है $1 इक्वल टू 70 रुपीज़, इट मीन्स to purchase 1 unit of foreign currency, that is dollar, means to purchase $1 we will have to spend how many rupees? 70 rupees. This is the meaning of foreign exchange rate. foreign exchange rate का मतलब बहुत ही सिंपल होता है. पहले इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, then only you can understand the upcoming concepts of this topic. That it is the price of foreign currency in terms of domestic currency. foreign currencies मतलब like foreign currencies means
एग्जांपल हम लेते हैं डॉलर का प्राइस इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी हमारे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, रुपीज़। मतलब डॉलर का प्राइस रुपीज़ के टर्म्स में कितना है, यही बताएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। या पाउंड का प्राइस जैसे लिखा हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ पाउंड इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ इज़, सपोज लिखा हुआ है 80 रुपीज़, मीन्स टू परचेज 1 पाउंड यू विल हैव टू स्पेंड हाउ मेनी रुपीज़, 80 रुपीज़। तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा 1 पाउंड, ये सिंबल पाउंड का होता है जो ब्रिटेन की करेंसी है, 1 पाउंड इक्वल्स टू रुपीज़ 80। इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज रेट को दिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रेट जनरली इन द टर्म्स ऑफ डॉलर दिखाया जाता है, क्योंकि लास्ट जो इससे पहले वाला वीडियो मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करा था। इन दैट वीडियो आई टोल्ड यू दैट सिंस वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी फॉरेन करेंसी इज डॉलर, वाई बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर रेडी टू एक्सेप्ट दियर पेमेंट्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। दैट इज वाई फॉरेन एक्सचेंज रेट इज जनरली डिटरमाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच फॉरेन करेंसी, डॉलर, ओके। आप कभी देखेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जनरली यही लिखा रहता है, $1 इक्वल टू दिस मच अमाउंट ऑफ रुपीज़, ओके। तो यहाँ पे लिखा गया $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़। इट मीन्स टू परचेज $1, 1 यूनिट ऑफ डॉलर 70 रुपीज़ आर रिक्वायर्ड, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द प्राइस ऑफ डॉलर इज 70 रुपीज़। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट मीन्स प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। जनरली इसको किस टर्म्स में डिफाइन करा जाएगा, किस फॉरेन करेंसी के टर्म्स में, डॉलर के टर्म्स में डिटरमाइन रहेगा। जैसे लिखा हुआ है $1 इक्वल्स टू ₹50। मतलब क्या हो गया, दिस इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब फॉरेन करेंसी जो डॉलर है इसका रेट का मतलब प्राइस कितना है, 50 रुपीज़। $1 खरीदने के लिए हमको खर्च करना पड़ेगा 50 रुपीज़। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। इसका मतलब क्या हो गया, अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये कैसे डिटरमाइन होता है कि $1 विल बी इक्वल टू ₹50 or ₹60 or ₹70, means how the prices of foreign currencies in terms of domestic currencies are determined. अब इस चैप्टर में जब भी मैं फॉरेन करेंसी की बात करूँगा तो मैं डॉलर की बात कर रहा हूँगा, इसका मतलब होगा। और जब भी डोमेस्टिक करेंसी की बात कर रहा हूँगा तो मैं किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँगा, रुपीज़ का। मतलब डोमेस्टिक कंट्री हम लेकर चलेंगे इंडिया को, और फॉरेन कंट्री का एग्जाम्पल जब भी लेंगे इस चैप्टर में तो हम किसका एग्जाम्पल लेंगे, यूएसए को, ताकि आसानी से आपको चीज़ें क्लियर हो सके। तो फॉरेन करेंसीज़ को कौन रिप्रेजेंट करेगी, कौन सी करेंसी, डॉलर, और डोमेस्टिक करेंसी को कौन सी करेंसी रिप्रेजेंट करेगी, रुपीज़। इज इज क्लियर नाउ। अब ये हमको जानना जरूरी है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, वी हैव अंडरस्टूड दैट फॉरेन एक्सचेंज रेट मीन्स प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मीन्स प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। मतलब फॉरेन करेंसी का प्राइस रुपीज़ के टर्म्स में कितना होगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कैसे डिटरमाइन होगा, या कौन डिटरमाइन करेगा कि फॉरेन करेंसीज जो हैं उनका प्राइस कितना होगा, या एक यूनिट फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए कितना रुपीज़ हमको स्पेंड करना पड़ेगा, या कितना यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी वी विल हैव टू स्पेंड, हाउ इज़ इट डिटरमाइंड। इसको डिटरमाइन करने के लिए there are 3 types of systems, means there are 3 types of methods which have been in use in the different regions of the world, or in different countries of the world. Different systems means there are 3 systems, and different systems have been in use in different countries. Out of these 3 systems, some countries had been following fixed exchange rate system. हैड बिन फॉलोइंग मीन्स पास्ट में सिस्टम चलता था, अभी ये सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है। सम कंट्रीज आर फॉलोइंग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एंड सम कंट्रीज आर फॉलोइंग मैनेज्ड फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग। तो इस टाइम पे फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कुछ कंट्रीज फॉलो करते हैं, कुछ कंट्री मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। और पास्ट में जब फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज फ्लोटिंग, दीज 2 सिस्टम्स वेर नॉट एग्जिस्टिंग दैट टाइम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वॉज बीइंग फॉलोड। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि आज तक एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने के लिए 3 सिस्टम्स फॉलो किए गए हैं या किए जा रहे हैं। कौन कौन से, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग एंड डर्टी फ्लोटिंग। मतलब दूसरे वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं, दीज आर द 3 मेथड्स विच हैव बीन used or which are being used at present also to determine the foreign exchange rate. ये 3 ऐसे सिस्टम हैं जिनको यूज़ किया जाता रहा है या यूज़ किए जा रहे हैं अभी भी
डिटरमाइन करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट या फॉरेन करेंसी का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए 3 सिस्टम्स या 3 मेथड्स यूज़ किए गए हैं या यूज़ किए जा रहे हैं। इन्हीं को एक एक करके हमको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को बोलते हैं टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहाँ पे फॉरेन हिडन है। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम मीन्स टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी को डिटरमाइन करने के लिए कितने मेथड्स यूज़ किए गए हैं या यूज़ किए जा रहे हैं? 3 सिस्टम्स। कौन कौन से? फिक्स्ड, फ्लैक्सिबल, मैनेज्ड, फ्लोटिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जैसे इंडिया का एग्जांपल है, तो बिफोर 1991 जब एलपीजी मॉडल हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट किया गया था, एलपीजी मॉडल, बिफोर दैट आवर कंट्री वाज फॉलोइंग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। हमारे कंट्री में भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो किया जा रहा था। आज के डेट में नो कंट्री एट प्रेजेंट इज़ फॉलोइंग द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। पास्ट में फॉलो करे जाते थे इस टाइप के सिस्टम्स। आज के डेट में कोई भी कंट्री फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। ये तो आप समझ लीजिए पहली बात। और सेकेंड, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये पास्ट में जो ये सिस्टम को फॉलो करा जाता था, ये सिस्टम क्या था। ओके, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वाज दैट सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट in this system is determined by government and remains unchanged। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट या एनी अदर एजेंसी विच हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, वो एजेंसी या गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कितना होगा या फॉरेन करेंसी का प्राइस कितना होगा। जैसे हमारे कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन नहीं करती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ था। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड determined before the flexible and managed floating exchange rate system, when fixed exchange rate system was being followed by different countries. Different countries determined the exchange rates or prices of foreign currencies in terms of their domestic currencies with the help of their central banks। different countries ने अपने अपने central banks को ये responsibility दी थी कि exchange rate को determine करना है सेंट्रल बैंक्स को। जैसे हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो हमारे कंट्री में आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करा करता था बिफोर 1991। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रेट इस सिस्टम में डिटरमाइन कैसे होता था? सिंपली कोई मेथड नहीं था। सेंट्रल बैंक जो भी प्राइस सेट कर देता था वही प्राइस सारे ट्रेडर्स को फॉलो करना होता था। वो प्राइस जब तक कि नेक्स्ट प्राइस अनाउंस नहीं होता था या प्राइस में कोई चेंज नहीं करता था सेंट्रल बैंक, ये प्राइस में कोई चेंज नहीं होता था, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी established by government for this purpose and it remains unchanged। इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। मतलब डेली बेसिस पे फॉरेन करेंसीज के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आता है और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द प्राइसेस ऑफ फॉरेन करेंसीज इन दिस सिस्टम रिमेन्स फिक्स्ड। कब इसमें चेंज होता है? जब कोई चेंज किया जाता है बाय द सेंट्रल बैंक। बिफोर दैट इट विल नॉट चेंज। इज दिस क्लियर? नाउ देयर वेर 2 टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। पास्ट में जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो किया जाता था, इसके 2 टाइप्स हुआ करते थे, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एंड ब्रेटन वुड सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री डिफाइन द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में जो डोमेस्टिक करेंसीज होती थी, जो डिफरेंट कंट्रीज़ होती थी, अपनी डोमेस्टिक करेंसी के प्राइस को फॉरेन करेंसीज के टर्म्स में डिफाइन नहीं करती थी। जैसे आज के रेट में एक्सचेंज रेट सिस्टम जो फ्लैक्सिबल हम फॉलो कर रहे हैं, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या मैनेज्ड फ्लोटिंग, अभी मैं बताऊंगा वो क्या होते हैं। इसमें डोमेस्टिक करेंसीज के प्राइसेस फॉरेन करेंसीज के टर्म्स में डिटरमाइन होते हैं। जैसे इस तरह से होता है कि $1 इक्वल्स टू ₹60। $1 इक्वल्स टू ₹60 मान लीजिए लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? इट इम्प्लाइज दैट ₹60 इक्वल्स टू $1। इट इम्प्लाइज दैट ₹1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/60। तो आप देख सकते हैं डोमेस्टिक करेंसी हमारी जो रुपीज़ है वो किस करेंसी के टर्म्स में डिटरमाइन करी गई है। इसकी वैल्यू, रुपी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के टर्म्स में इधर पे हमने डिटरमाइन किया गया है। तो अभी इस तरह का एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करा जाता है जिसमें डोमेस्टिक करेंसीज़ की वैल्यू फॉरेन करेंसीज़ के टर्म्स में डिफाइन करी जाती हैं। बट अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम द वैल्यूज़ ऑफ डोमेस्टिक करेंसीज वे आर नॉट डिटरमाइंड इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसीज।
बट दीज वर डिटरमाइंड इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 पाउंड, ये पाउंड है, पाउंड इज़ द करेंसी ऑफ ब्रिटेन. इफ़ 1 पाउंड इक्वल्स टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड and $1 is the currency of USA. $1 was equal to 1 gram of gold. Then exchange rate would be 1 pound equals to $2. इसका मतलब क्या हुआ कि suppose someone is having 1 pound. ब्रिटेन में कोई इंडिविजुअल है और उसके पास 1 पाउंड है, तो 1 पाउंड वॉज एग्जैक्टली इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड. तो यदि गोल्ड से इसको एक्सचेंज करेगा तो इस इंडिविजुअल को कितना गोल्ड मिल जाएगा? 2 ग्राम ऑफ गोल्ड. ओके. और डॉलर, इफ़ दिस पर्सन वांट्स टू परचेज डॉलर, तो डॉलर का प्राइस कितना है? 1 ग्राम. $1 equals to 1 gram of gold. Means if you are having or any person was having 1 gram of gold, he would get $1. यदि किसी के पास 1 ग्राम गोल्ड होता तो उसे कितना डॉलर मिलता? $2. This individual is having how much quantity of gold? 2 gram of gold. तो 1 gram of gold equals to $1. So 2 gram of gold would be equal to $2. तो इस तरह से यदि हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखें तो क्या हो जाएगा? यदि कोई 1 पाउंड रखा हुआ है तो कितना डॉलर वो परचेज़ कर सकता है? $2. मतलब 1 पाउंड किसके इक्वल हो गया? $2 के. मतलब पाउंड का प्राइस डॉलर के टर्म्स में डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं होता था. पाउंड का प्राइस किस में होता था? गोल्ड में. डॉलर का प्राइस भी किस में डिटरमाइन होता था? गोल्ड में. और इस तरह से करेंसीज के बीच में एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाता था विद द हेल्प ऑफ गोल्ड. गोल्ड इसमें मीडियम बनता था. इज इज क्लियर? देन gold standard system was replaced by another system which was also again the example of fixed exchange rate system. This was Bretton Woods system. ये system क्या था? This system was adopted in United Nations Monetary and Financial Conference. एक United Nations की Monetary and Financial Conference हुई. It held in Bretton Woods town of England. इंग्लैंड में एक टाउन है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स. इसी ब्रेटन वुड्स जगह पे ये कॉन्फ्रेंस हुई. और इसी ये कॉन्फ्रेंस कब हुई? ड्यूरिंग 1 जुलाई to 22 जुलाई 1944. अंडर दिस सिस्टम, मतलब ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था, इसी यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई जो 1 जुलाई to 22 जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स टाउन ऑफ ब्रिटेन, इसमें इस ब्रेटन वुड्स सिस्टम को अडॉप्ट किया गया. जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का एक एग्जाम्पल था, एक टाइप था. ये सिस्टम की क्या खासियत थी? ये किस तरह का सिस्टम था? अंडर दिस सिस्टम डिफरेंट कंट्रीज डिसाइडेड टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ दियर डोमेस्टिक करेंसीज इन टर्म्स ऑफ US डॉलर विच वाज अल्टीमेटली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड. मतलब अभी यहाँ पे क्या था? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में डिफरेंट कंट्रीज डिसाइडेड द वैल्यूज ऑफ दियर डोमेस्टिक करेंसीज इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. बट ब्रेटन वुड्स सिस्टम जिसे अडॉप्ट करा गया ड्यूरिंग in year 1944 after the United Nations Monetary and Financial Conference which held in Bretton Woods town of England during 1st July to 22 July 1944. Under this system, different countries agreed that these countries would determine the values of their domestic currencies not in terms of gold but in terms of dollar, and dollar would be ultimately convertible into gold. मतलब करेंसीज वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ थे सबकी डोमेस्टिक करेंसीज की वैल्यू किस टर्म्स में डिटरमाइन होगी? डॉलर में. और डॉलर की वैल्यू किस में डिटरमाइन होती थी? गोल्ड में. इस तरह का सिस्टम जो था इसको बोला गया ब्रेटन वुड्स सिस्टम. ये दोनों फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के एग्जाम्पल थे क्योंकि इसमें जो भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फिक्स करी जाती थी, दीज वैल्यूज़ वे आर नॉट फ्लेक्सिबल. इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी. दीज वैल्यूज़ रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम until these were changed by the governments of different countries or any other agency which was established by these governments for this purpose. Foreign exchange rate जब तक गवर्नमेंट या गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश किसी एजेंसी द्वारा चेंज नहीं करी जाती थी, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या रहता था? फिक्स्ड रहता था, अनचेंज रहता था. इसीलिए इस सिस्टम को बुलाया जाता था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. अब हम ये देखेंगे कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था इसकी मेरिट्स क्या थी और डिमेरिट्स क्या थी. इट इंश्योर्स, मतलब ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की मेरिट्स क्या होते हैं, इसमें क्या अच्छाइयाँ होती हैं और क्या इसकी डिमेरिट्स हैं. इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट. यहाँ पे एफ फॉरेन एक्सचेंज रेट छुपा हुआ है. फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब फॉरेन करेंसीज के प्राइसेस में इसमें क्या होती है? स्टेबिलिटी. क्योंकि इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, फिक्स्ड रहता है. तो जो चीज़ फिक्स्ड होती है उसमें क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है. मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बार अनाउंस कर दिया कि $1 वुड बी इक्वल टू
सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि $1, if government of India is following fixed exchange rate system and government of India is announcing that $1 equals to ₹20, मीन्स अब $1 इक्वल्स टू ₹20 ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। कब? टिल फर्दर ऑर्डर, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नया ऑर्डर या नया कोई एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन नहीं करती, तब तक ये क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो इसमें रहती है स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के कारण इट प्रिवेंट्स द स्पेक्यूलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी। सट्टा हम किस चीज़ में लगाते हैं, जिसमें चेंज होता है। अब जैसे मान लीजिए डॉलर की वैल्यू यदि प्राइस में चेंज करा जाता है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब आज $1 बराबर ₹20 है, नेक्स्ट डे 30 भी हो सकता है, या 25 हो सकता है, या 21 हो सकता है। मतलब डॉलर के प्राइस में चेंज होने की यदि पॉसिबिलिटी होगी तो लोग इसमें क्या करेंगे, स्पेक्यूलेशन करेंगे, सट्टा लगाएंगे। लोग सट्टा लगाएंगे, चलो कल आज डॉलर का प्राइस 20 है, कल कितना होगा, कुछ लोग लगाएंगे 21 पे पैसा, कुछ लोग 22 पे पैसा, कुछ लोग 32 पे प्राइस जो भी मनी अपना क्या करेंगे, लगाएंगे, और इस तरह से सट्टा खेलेंगे। लेकिन यदि लोगों को ये पता चल जाए कि $1 इक्वल्स टू ₹20, इट विल रिमेन फिक्स्ड, इट विल नॉट चेंज, तब अपने आप जो होगा स्पेक्यूलेशन वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो इस तरह से फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में सट्टेबाजी नहीं होती, मतलब स्पेक्यूलेशन नहीं होता है। लेकिन इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं। पहला क्या, गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन 100% गोल्ड रिजर्व। इसमें जितनी करेंसी आप डिटरमाइन करेंगे उतना गोल्ड रिजर्व आपको, जितनी करेंसी आप इशू करेंगे या जितनी करेंसी आप रिलीज़ करेंगे उतना गोल्ड रिजर्व आपको मेंटेन करना होता था इस सिस्टम में। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सपोज $1 was equal to in this system, $1 was equal to fixed exchange rate system, suppose 1 gram of gold, ओके। और अमेरिका ने सपोज रिलीज़ करा है 100 या 1000 यूनिट्स ऑफ डॉलर। 1000 यूनिट डॉलर यदि अमेरिका ने रिलीज़ करा तो अमेरिका को कितना गोल्ड मेंटेन करना पड़ेगा, 1000 ग्राम। यदि 10,000 यूनिट्स डॉलर की यदि अमेरिका ने इशू करा तो 10,000। यदि 1 लाख डॉलर यदि यूनिट्स अमेरिकन डॉलर बाय अमेरिकन गवर्नमेंट इज़ रिलीज्ड, अमेरिकन गवर्नमेंट वुड हैव टू मेंटेन 1 लाख ग्राम स्टॉक ऑफ गोल्ड। 1 करोड़ यूनिट्स यदि करा तो 1 करोड़ ग्राम गोल्ड मेंटेन करना पड़ेगा, गोल्ड का स्टॉक अमेरिकन गवर्नमेंट को। तो एक प्रॉब्लम ये थी कि जितनी यूनिट हम गवर्नमेंट्स पहले प्राइस फिक्स करती थी इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड, और उसके बाद जो भी प्राइस होता था फॉरेन डोमेस्टिक करेंसीज़ का, उतना गोल्ड और जितना डोमेस्टिक करेंसीज गवर्नमेंट्स रिलीज़ करती थी उसी प्रपोर्शन में उनको गोल्ड का स्टॉक मेंटेन करना पड़ता था। तो दिस वाज अनदर प्रॉब्लम, दिस वाज अ प्रॉब्लम। अनदर प्रॉब्लम वाज इन दिस सिस्टम, क्या प्रॉब्लम होती है, देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी का अंडर वैल्यूएशन भी हो सकता है या ओवर वैल्यूएशन भी हो सकता है। कैसे अंडर वैल्यूएशन हो सकता है, सपोज किसी कंट्री के पास एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 ग्राम गोल्ड का स्टॉक है, ओके, और कंट्री ने रिलीज़ करा 100 यूनिट्स डोमेस्टिक करेंसी की, ओके। तो 1 यूनिट का प्राइस कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का प्राइस कितने के बराबर हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, ओके। और यदि कंट्री के पास यदि 1000 सपोज ग्राम गोल्ड है और 100 यूनिट कंट्री ने रिलीज़ करा हुआ है, तो 1 यूनिट करेंसी का प्राइस कितना हो जाएगा, 100 यूनिट इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 ग्राम। यदि कंट्री के पास सपोज 10,000 ग्राम गोल्ड है, तब 100 यूनिट यदि कंट्री ने रिलीज़ करा है और 10,000 ग्राम गोल्ड का स्टॉक है, तो कंट्री तो 1 यूनिट का प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम कर सकते हैं 100 यूनिट्स इक्वल्स टू 10,000 ग्राम ऑफ गोल्ड, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे गोल्ड का स्टॉक बढ़ रहा है कंट्री के पास, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, वैल्यू बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। इसको बोलते हैं ओवर वैल्यूएशन। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवर वैल्यूएशन। और यदि कंट्री के पास गोल्ड का स्टॉक बहुत कम है, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल लिया था, सपोज कंट्री इज़ हैविंग वेरी स्मॉल स्टॉक ऑफ गोल्ड, लाइक country is having suppose only 100 gram stock of gold, and country has released suppose country has released
100 units of domestic currency, in that case 1 unit would be equals to 1 gram of gold. मतलब इससे क्या पता चलता है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू पहले कितनी हो गई थी 100 ग्राम ऑफ गोल्ड, अभी कितना हो गया 1 यूनिट डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कितनी होगी 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. तो यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का क्या हो गया अंडर वैल्यूएशन. सो जब कंट्रीज ज़्यादा स्टॉक गोल्ड का मेंटेन करती थी तो डोमेस्टिक करेंसीज की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ जाती थी, इसको बोला जाता था ओवर वैल्यूएशन. और जब कम कंट्रीज गोल्ड स्टॉक स्मॉल स्टॉक ऑफ गोल्ड मेंटेन करती थी तो कंट्रीज डोमेस्टिक करेंसीज की वैल्यू क्या हो जाती थी कम हो जाती थी, और इस तरह से अंडर वैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की भी पॉसिबिलिटी रहती थी. तो ये सारी प्रॉब्लम्स इस सिस्टम में थी. उसके बाद दूसरा जो सिस्टम फॉलो हुआ या फॉलो किया जा रहा है अभी भी, इसको बोलते हैं फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. सेकेंड सिस्टम इज़ फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. इट इज़ दैट एक्सचेंज रेट सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. ये सिस्टम ऐसा है जिसमें फॉरेन करेंसीज का प्राइस या फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, बट इट इज़ डिटरमाइंड बाय डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. जैसे अदर गुड्स का प्राइस डिटरमाइन होता था, क्लास 11 में हमने स्टडी करा कि हाउ द प्राइसेस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड. द प्राइसेस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिमांड एंड सप्लाई. मतलब सपोज एक्स एक प्रोडक्ट है और इसका डिमांड ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, देन इट्स प्राइस विल इंक्रीज, एंड इफ डिमांड ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इट्स प्राइस विल डिक्रीज. लाइकवाइज इफ सप्लाई ऑफ एक्स इज़ अ प्रोडक्ट और इसकी सप्लाई बढ़ गई, किसी भी चीज़ की सप्लाई जब बहुत ज़्यादा होती है तो उसका प्राइस क्या होता है डिक्रीज़ हो जाता है. एंड इफ सप्लाई इज़ डिक्रीजिंग मतलब एक्स प्रोडक्ट की सप्लाई कम होगी, मार्केट में बहुत कम आ रहा है प्रोडक्ट, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा. तो जो डिफरेंट गुड्स होती हैं उनके या सर्विसेज, द प्राइसेज ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड लाइक दिस ऑन बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इन द सेम वे द प्राइसेज ऑफ foreign currencies are also determined in flexible exchange rate system on the basis of demand and supply. For example, suppose foreign currency जो हम ले रहे हैं उसका डॉलर का एग्जांपल ले रहे हैं. if because of some reasons demand of dollar has increased, यदि डॉलर का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है then price of dollar will increase. तो price of dollar, as we know that the price of dollar is known as price of foreign currency. Price of foreign currency means foreign exchange rate. तो इसको क्या बोलेंगे foreign exchange rate has increased. Or if demand of dollar has decreased, suppose because of some reason the demand of dollar has decreased, then the price of dollar will decrease, and we'll see that there is decrease in price of foreign currency means there is decrease in foreign exchange rate. Likewise, if supply of dollar has increased in our country, there is oversupply of dollar, then the price of dollar will decrease like other commodity. Means foreign currencies are also लाइक अदर कमोडिटीज़. जैसे अदर कमोडिटीज़ होती हैं वैसे ही फॉरेन करेंसीज भी होती हैं. फॉरेन करेंसीज आर ऑल्सो लाइक कमोडिटीज़. तो जैसे कमोडिटीज़ के प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं, लाइक वाइज फॉरेन करेंसीज के प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में. यदि सप्लाई बढ़ गई डॉलर की तो प्राइस डॉलर का कम हो जाएगा. इफ सप्लाई डॉलर की कम होगी, हमारे कंट्री में डॉलर की स्कैर्सिटी हो गई, कम हो गया डॉलर, तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस क्या हो जाएगा इंक्रीज. तो इसको बोलेंगे डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट. एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई there will be decrease in foreign exchange rate, and and if there is decrease in supply of foreign currency there will be increase in foreign exchange rate. So this is how foreign exchange rate is determined in flexible exchange rate system. Very simple, on the basis of demand and supply of foreign currency. A foreign जो flexible exchange rate system होता है उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं. जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के डिमेरिट्स थे वो फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के मेरिट बन जाएंगे, और जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के मेरिट्स थे वो इसके डिमेरिट बन जाएंगे. जैसे फ्लैक्सिबल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का पहला डिमेरिट क्या था, मैंने बताया था इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. तो यहाँ पे हो जाएगा इन फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ overvaluation or undervaluation of domestic currency, because the prices of domestic currencies are not determined in this system, flexible exchange rate system, on basis of gold, but these are determined on the basis of demand and supply. That is why there is no possibility of undervaluation, overvaluation or undervaluation of domestic currency. Okay. सेकेंड थिंग, देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू मेंटेन 100% गोल्ड रिजर्व. इस वाले सिस्टम में ये कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं होती, आपको गोल्ड रिजर्व का स्टॉक मेंटेन नहीं करना होता है, बिकॉज डोमेस्टिक करेंसीज जो होती हैं उनके प्राइसेस गोल्ड के टर्म्स में डिटरमाइन नहीं करे जाते हैं. इन गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम विच वाज द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, उस सिस्टम में मैंने आपको बताया था डिफरेंट कंट्रीज़
in that system had to maintain gold reserve. Why? Because the prices of domestic currencies were determined in the terms of gold, but now the prices of domestic currencies are determined in flexible exchange rate system in terms of foreign currencies and on the basis of demand and supply. So there is no rule of gold, so countries do not have to maintain any stock of gold in this. So these are the two मेरिट्स डिमेरिट्स. जो फ्लैक्सिबल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की मेरिट्स थी वो इसकी डिमेरिट बन जाएंगी. उसमें पहला मेरिट क्या था? देयर वाज स्टेबिलिटी इन दैट सिस्टम, बट इन दिस सिस्टम इट कॉजेज इनस्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट बिकॉज एवरी डे demand and supply of foreign currencies change, and foreign exchange rate is determined on the basis of demand and supply. For example, suppose $1 equals to ₹70 है, मतलब डॉलर का प्राइस कितना है? 70 रुपीज़. अब हर मोमेंट पे डॉलर का डिमांड भी चेंज होगा, आइदर इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज, और हर मोमेंट पे इसका सप्लाई भी आइदर इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज. सो बिकॉज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ dollar, which is the example of foreign currency, will change at each and every moment of time. That is why the price of dollar will also change at each and every moment of time. And price of dollar means price of foreign currency means foreign exchange rate will keep on changing. हर मोमेंट पे ये चेंज होता रहता है. यदि आप स्टॉक एक्सचेंज मार्केट या कोई बिजनेस न्यूज़ चैनल आप देखेंगे तो उसमें एक एक्सचेंज रेट का मीटर चलता रहता है. एक्सचेंज रेट का मीटर यदि देखेंगे तो $1 इक्वल्स टू 70 है, तो अगले मोमेंट पे ये 70.5 70.3, मतलब हर मोमेंट पे डॉलर का प्राइस रुपीज़ के टर्म्स में या पाउंड का प्राइस या येन का प्राइस जनरली दिखाया किसका जाता है? डॉलर का प्राइस. हर मोमेंट पे क्या होता रहेगा? ये चेंज होता रहेगा. मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट हर मोमेंट पे क्यों चेंज होती है? बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ नॉट फिक्स्ड. Now it is flexible. Why? Because there is no rule of government or RBI in the determination of prices of foreign currencies. These are determined by the change in demand and supply, and as we know that the demand of foreign currencies and supply of foreign currencies change at each and every moment of time. That is why the prices of foreign currencies also change at each and every moment of time. सो फर्स्ट इस सिस्टम की प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है उसमें इनस्टेबिलिटी होती है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है, हर मोमेंट पे चेंज होते हैं. दूसरी प्रॉब्लम ये होती है इट प्रमोट्स स्पेकुलेशन. चूँकि डॉलर का प्राइस हर मोमेंट पे रुपीज़ के टर्म्स में चेंज होगा, इसीलिए जो स्पेकुलेशन करते हैं, जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, जो सट्टेबाज होते हैं, वो क्या करेंगे? सट्टा लगाएंगे. वो कहेंगे कि आज डॉलर का प्राइस 70 रुपीज़ है तो कल 71 होगा या 72. इस पर सब लोग अपना क्या लगाएंगे? मनी इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे, और इस तरह से वो क्या करेंगे? स्पेक्यूलेशन करेंगे, सट्टा लगाएंगे, और ये प्रमोट करता है स्पेक्यूलेशन को. ये इसकी प्रॉब्लम होती है. ठीक है, अभी हम फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में कुछ और बातें करेंगे. जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि foreign exchange rate is determined on the basis of inflexible exchange rate system, means the prices of foreign currency, for example price of dollar will be determined on basis of demand and supply. अभी हम डिमांड डिस्कस करते हैं. तो डॉलर का प्राइस किस पे डिपेंड करेगा? डिमांड पे. ठीक है, मतलब यदि डिमांड इंक्रीज़ होता है, डॉलर का डिमांड इंक्रीज़ होता है, तो डॉलर का जो प्राइस है, यहाँ पे लिख देते हैं प्राइस ऑफ डॉलर, इसको क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट. सो इफ डिमांड ऑफ डॉलर इज इंक्रीजिंग देन फॉरेन एक्सचेंज रेट विल इंक्रीज. हम देखते हैं मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है, लोग ज़्यादा परचेज करने जिस चीज़ को चले जाते हैं, उसका प्राइस इंक्रीज. सो इफ डॉलर इज बीइंग डिमांडेड इन मोर क्वांटिटी, इट्स प्राइस विल इंक्रीज. यदि डॉलर का डिमांड डिक्रीज होता है तो इसका प्राइस भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ये चीज़ आपको समझ में आएगा. डॉलर का प्राइस उसके डिमांड पे डिपेंड करेगा. लेकिन क्वेश्चन ये है कि डॉलर का डिमांड में चेंज क्यों आता है? मीन्स व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ डॉलर, मीन्स व्हाट आर दोज फैक्टर्स विच डिटरमाइन दैट वेदर मोर क्वांटिटी ऑफ डॉलर विल बी डिमांडेड और लेस क्वांटिटी ऑफ डॉलर विल बी डिमांडेड. तो नेक्स्ट हमको ये स्टडी करना है कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर. जो फॉरेन करेंसीज होती हैं जिसको हम डॉलर के नाम से इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, मैंने आपको बताया है, इसकी डिमांड क्यों चेंज होती है? ऑब्वियसली ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता होगा डॉलर की डिमांड, और उन फैक्टर्स में जब चेंज होगी तो डॉलर की डिमांड में चेंज होगी. इन फैक्टर्स को बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. लाइक क्लास 11 में हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ डिफरेंट गुड्स. डिफरेंट गुड्स के जो डिमांड होते हैं उनके डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़ा था. आपको याद आ रहा होगा. प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस. सो लाइक अदर कमोडिटीज़,
In case of dollar also, its demand depends on various factors, and these factors are known as determinants of demand for foreign exchange. फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन करेंसी है वो भी एक तरह की कमोडिटी है, और इसकी डिमांड जो होती है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो हमको स्टडी करना है, इसी को बोला जाता है सोर्सेज और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। मतलब फॉरेन करेंसीज की जो डिमांड होती है उन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला होता है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम फॉरेन करेंसी या डॉलर की डिमांड क्यों करेंगे? इफ़ वी वांट टू इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम यूएसए से, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी फॉरेन कंट्री का एग्जांपल लेंगे तो यूएसए, डोमेस्टिक करेंसी का कंट्री का एग्जांपल लेंगे तो इंडिया। दैट इज़ वाई इफ़ आई एम सेइंग दैट फॉरेन करेंसी मीन्स I'll be telling about dollar. If I'm saying about domestic currency means I'm talking about rupees. Okay, तो यूएसए से इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो सपोज यूएसए से हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो हमको पेमेंट किस में करना होगा? डॉलर्स में करना होगा। तो फॉरेन एक्सचेंज की पहली डिमांड हम क्यों करते हैं? टू इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज वी हैव टू पे टू फॉरेन कंट्रीज, एंड फॉरेन कंट्रीज विल नॉट एक्सेप्ट the payments in terms of rupees. They will accept the payments in terms of either their own domestic currencies or in terms of dollar, because dollar is worldwide accepted currency. So this is the reason why dollar or foreign currencies are demanded to import goods and services. Second होता है to investment to abroad. यदि इंडियन इन्वेस्टर्स फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो फॉरेन कंट्री में वो रूपी लेकर तो जाएंगे नहीं, बिकॉज रूपी इज़ नॉट applicable, या rupee cannot be used in America. So if suppose there is an Indian individual and that individual is having suppose 1000 crore rupees and he wants to set up a factory in America, मतलब अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो he will not go to America with rupees. Firstly he will go to RBI and from RBI he will purchase what? डॉलर। तो डॉलर परचेज करेगा मतलब डॉलर की डिमांड करेगा। सो फॉरेन करेंसी की डिमांड वो क्यों कर रहा है? इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। यदि फॉरेन कंट्री में यदि आपको इन्वेस्ट करने जाना है तो यू विल हैव टू हैव फॉरेन करेंसी मीन्स डॉलर। सो आप डॉलर की डिमांड क्यों करेंगे? टू इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, टू इन्वेस्ट टू अब्रॉड। नेक्स्ट लेंडिंग टू अब्रॉड। यदि किसी फॉरेन कंट्री को आपको उधार देना है, सपोज अमेरिका आपसे बोरो करना चाहता है, अमेरिका वांट्स टू बोरो सम अमाउंट ऑफ मनी, तो रुपीज़ में अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि रुपीज़ अमेरिका में सर्कुलेशन में नहीं है, अमेरिका में रुपीज़ का कोई यूज़ नहीं होगा। तो अमेरिका किस टर्म्स में मांगेगा उस उधार को? डॉलर में। तो यदि किसी अमेरिकन को आप लेंड करना चाहते हैं, अमाउंट ऑफ मनी उधार देना चाहते हैं आप, तो आप किस चीज़ की डिमांड करेंगे आरबीआई से? सबसे पहले डॉलर, फिर डॉलर उस अमेरिकन को आप देंगे जिसको आप उधार देना चाहते हैं। या इवन सपोज नाइजीरिया एक कंट्री है, अफ्रीका का बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंट्री है। नाइजीरिया वांट्स टू बोरो सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अग्री टू प्रोवाइड दैट अमाउंट ऑफ मनी टू नाइजीरिया। नाइजीरिया विल नॉट एक्सेप्ट दैट अमाउंट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, क्योंकि नाइजीरिया रुपीज़ के टर्म्स में उधार लेके क्या करेगा? उसका कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। तो नाइजीरिया विल डिमांड इन टर्म्स ऑफ इट्स डोमेस्टिक करेंसी और इन टर्म्स ऑफ डॉलर, क्योंकि डॉलर के टर्म्स में जब उसको उधार मिलेगा तो उस डॉलर से दूसरे कंट्रीज़ को पेमेंट कर पाएगा। तो इस कारण से भी दूसरे कंट्रीज़ को यदि आपको लोन देना है तो इसलिए फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है। रीपेमेंट ऑफ लोन्स टू अब्रॉड। दूसरे कंट्री से यदि इंडिया ने लोन लिया है और लोन्स को वापस करना है तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक करेंसी के टर्म्स में, रुपीज़ के टर्म्स में इस लोन को आप वापस नहीं करना होगा इंडिया को। किस टर्म्स में करना होगा? फॉरेन करेंसी के टर्म्स में वापस करना होगा। विजिट बाय इंडियंस टू अब्रॉड। सपोज सम इंडियंस आर गोइंग टू अब्रॉड फॉर विजिट, फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं विजिट करने के लिए, तो वहाँ पे रुपीज़ लेके नहीं जा सकते क्योंकि रुपीज़ का कोई यूज़ नहीं हो पाएगा। तो वो क्या इसके लिए डिमांड करेंगे? फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे। रेमिटेंसेस बाय द फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? जो लोग पैसा कमाकर एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजते हैं उसको बोलते हैं रेमिटेंस। तो देर आर मेनी फॉरेनर्स हु आर वर्किंग इन इंडिया। जब इंडिया में जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, जब यहाँ से पैसा अपने होम कंट्री में भेजते हैं तो रुपीज़ तो भेजेंगे नहीं, वो किस टर्म्स में भेजेंगे? डॉलर के टर्म्स में या अपनी डोमेस्टिक करेंसी के टर्म्स में। तो वो क्या करेंगे? डोमेस्टिक करेंसी जो हमारे लिए क्या है, उनकी डोमेस्टिक करेंसी हमारे लिए फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे। रेमिटेंस मतलब पैसा दूसरे देश में भेजना। तो जो फॉरेन वर्कर्स हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, वो अपनी कंट्री में, जो हमारे लिए फॉरेन कंट्री जो पैसा भेजेंगे वो इंडियन रूपी के टर्म्स में तो भेजेंगे नहीं, रूपी के फॉर्म में नहीं भेजेंगे। फॉर दैट दे विल डिमांड द फॉरेन करेंसी।
तो फॉरेन करेंसीज की डिमांड क्यों होती है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। टू इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, टू इन्वेस्ट टू अब्रॉड, टू लेंड टू अब्रॉड, टू रीपे द लोन्स टू अब्रॉड, टू विजिट टू अब्रॉड बाई इंडियंस एंड रेमिटेंसेज बाई फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया, इस कारण से होती है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात यह है कि जितने भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, जिसको हम क्या मान के चल रहे हैं, डॉलर, इन डिटर्मिनेंट्स और डिमांड के बीच का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। कोई आपको प्रॉब्लम होने की, कोई आपको इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इंक्रीजिंग, इफ़ दिस वन इज इंक्रीजिंग, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल इंक्रीज। इफ़ इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड इज इंक्रीजिंग, demand will increase. If lending to abroad is increasing, demand will increase. If repayment of loans to abroad is increasing, then demand of foreign currency will increase. If visit by Indians to abroad is increasing, demand of foreign currency will increase. If remittances by foreign workers working in India is increasing, then demand of foreign currency will increase. And vice versa, means if import of goods and services is decreasing, then demand of foreign currency will decrease. If investment to abroad is decreasing, then demand of foreign currency will decrease. If lending to abroad is decreasing, if lending to abroad is decreasing, then demand of dollar, this will decrease. If repayment of loans to abroad is decreasing, then demand of dollar will decrease. If visit by Indians to abroad is decreasing, then demand of dollar will decrease. If remittances by foreigners working in India is decreasing, then demand of dollar will decrease. Means there is direct relation between the determinants of demand of foreign currency and demand of foreign currency. मतलब यदि determinants of demand of foreign currency decrease हो रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज। यदि ये इंक्रीज हो रहे हैं तो फॉरेन करेंसी की डिमांड भी हो जाएगी इंक्रीज। अब इस मैकेनिज्म को हम एक तरह से समझ लेते हैं कि इससे क्या होगा इफेक्ट, या क्या हम बताना चाह रहे हैं। यहाँ नीचे आपको दिखाया गया है, इस एक फ्लो चार्ट बनाया गया है, इसमें लिखा गया है इंक्रीज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, यदि इनमें इंक्रीज होता है, मतलब इनमें से किसी में भी यदि इंक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा, एरो से दिखाया गया है इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स इफ दे आर इंक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ दिस डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी विल इंक्रीजिंग। और मैंने अभी बताया इफ डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इज इंक्रीजिंग, देन देर विल बी इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, देन फॉरेन करेंसी का प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और फॉरेन करेंसी का प्राइस इंक्रीज मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब ये चीज़ आपको जानना जरूरी है, इफ़ द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इज इंक्रीजिंग, then the value of domestic currency will decrease in terms of foreign currency. फॉरेन करेंसी की वैल्यू और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में ऑपोजिट रिलेशन होता है। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज $1 इक्वल्स टू ₹50 है, ठीक है। अब सपोज डॉलर का प्राइस बढ़ गया, अब डॉलर का प्राइस हो गया $1 इक्वल्स टू ₹70, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट हैज़ इंक्रीज। क्यों? क्योंकि पहले $1 परचेज करने के लिए या $1 खरीदने के लिए कितना रुपया जरूरी था, ₹50। अब सेम क्वांटिटी $1 खरीदने के लिए कितना रुपया लग रहा है, मोर अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, ₹70। मीन्स डॉलर हैज़ बिकम कॉस्टलियर, मीन्स प्राइस ऑफ डॉलर हैज़ इंक्रीज, फॉरेन एक्सचेंज रेट हैज़ इंक्रीज, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये वाला दिस सिचुएशन हैज़ कम। अब मैंने बताया यदि डॉलर का प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब रूपी का प्राइस कम हो गया, रूपी सस्ता हो गया। कैसे, देखिए पहले $1 यदि खर्च करते थे तो कितना रुपया मिलता था, ₹50 मिलता था। नाउ वी आर स्पेंडिंग $1 एंड वी आर गेटिंग मोर क्वांटिटी ऑफ ₹70, मीन्स रूपी हैज़ बिकम चीपर, रुपया क्या हो गया, सस्ता। मतलब डॉलर जब महंगा तो रुपया सस्ता। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ₹1 में 50 आम मिलते थे, अब ₹1 में कितने आम मिल रहे हैं, 70 आम मिल रहे हैं, मतलब आम हो गया सस्ता। आम का मतलब यहाँ क्या है, रुपीज़, और ₹1 का मतलब हो गया $1। $1 में पहले ₹50 मिलता था, नाउ $1 में वी आर गेटिंग ₹70, एंड द प्राइस ऑफ रुपीज़ हैज़ डिक्रीज्ड। इसका मतलब जब फॉरेन करेंसी का प्राइस इंक्रीज होगा तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये जो फ्लो चार्ट आपको बताया गया उसमें ये बताया गया है, इफ़ दीज डिटर्मिनेंट्स, ये जितने भी डिटर्मिनेंट्स है, इफ दीज डिटर्मिनेंट्स आर इंक्रीजिंग, अपवर्ड एरो मतलब इंक्रीजिंग, देन डिमांड ऑफ डॉलर
विल इंक्रीज। और किसी भी चीज़ का डिमांड यदि इंक्रीज होता है, डॉलर का डिमांड इंक्रीज होता है, तो क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ डॉलर विल इंक्रीज। प्राइस ऑफ डॉलर को क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट विल इंक्रीज। और जब फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा तब क्या होगा, प्राइस ऑफ रुपीज़ विल डिक्रीज। अभी ऊपर मैंने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर बताया। और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और इस तरह से जब रुपी की वैल्यू में डिक्रीज होता है तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ओके, ये डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्यों हुआ, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्यों हुआ, गवर्नमेंट ने इसकी वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी की कम नहीं करी, बट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डिक्रीजिंग। तो इफ वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, इट इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो कोई पूछता है कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्यों होता है, तो आप पूरा मैकेनिज्म आपको बताना पड़ेगा। If there is increase in determinants of demand of foreign exchange, there will be increase in demand of foreign exchange. Because of this, there will be increase in foreign exchange rate and there will be decrease in value of domestic currency. अब अगली स्लाइड में इसका ऑपोजिट सिचुएशन लिया गया है। इफ़ देर इज डिक्रीज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट के जो डिटर्मिनेंट्स है, ये जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, दीज डिटर्मिनेंट्स, suppose now these are decreasing not increasing, these determinants are decreasing. So if there is decrease in determinants of demand of foreign exchange, what will happen, there will be decrease in demand of foreign exchange rate, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। एंड डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, किसी फॉरेन करेंसी का डिमांड कम होगा तो देर विल बी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और इसको बोला जाएगा एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसको इस तरह से समझते हैं, जो डिटर्मिनेंट्स हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डॉलर, फॉरेन एक्सचेंज के जो डिटर्मिनेंट्स है, इफ दीज आर डिक्रीजिंग देन व्हाट विल हैपन, डिमांड ऑफ डॉलर विल डिक्रीज, और इसके कारण क्या होगा, प्राइस ऑफ डॉलर विल डिक्रीज, और इसको क्या कहा जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट विल डिक्रीज। और जब फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज होगा तो इसका ऑपोजिट होगा, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल इंक्रीज, मतलब प्राइस ऑफ रुपीज विल इंक्रीज, एंड इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारे केस में डोमेस्टिक करेंसी रुपीज़ है, इसको क्या बोला जाएगा, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब इसको फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब फॉरेन करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। इसको मैं समझा देता हूँ कैसे। सपोज़ $1 इक्वल्स टू ₹50 है। नाउ $1 इक्वल्स टू हो जाता है ₹30। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब डॉलर का प्राइस क्या हुआ है। डॉलर का प्राइस पहले कितना था, $1 कितने मिलता था, 50 रुपीज़ में। अब डॉलर कितने मिल रहा है, $1 30 रुपीज़ में ही मिल रहा है। मीन्स प्राइस ऑफ डॉलर हैज़ डिक्रीज। डॉलर सस्ता हो गया, पहले 50 रुपया खर्च करते थे, 50 रुपीज़ स्पेंड करते थे तो डॉलर मिलता था। नाउ ओनली बाई स्पेंडिंग 30 रुपीज़ वी आर गेटिंग सेम क्वान्टिटी ऑफ डॉलर्स। फॉरेन एक्सचेंज रेट हैज़ डिक्रीज। अब देखेंगे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू, जो रुपीज़ हमारी डोमेस्टिक करेंसी, इसकी वैल्यू को क्या हुआ। पहले $1 में कितना रुपीज़ हमको मिलता था, 50 रुपीज़। अब $1 खर्च करते हैं तो केवल कितना रुपीज़ मिलता है, 30 रुपीज़। मतलब रुपया क्या हो गया, महंगा। क्योंकि इनिशियली या अर्लियर वी वेयर able to purchase more quantity of rupees by spending $1. Now we are able to purchase less quantity of rupees by spending same quantity of dollar. तो अब हम कम क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं रुपीज़ की सेम डॉलर स्पेंड करके, क्योंकि रुपया क्या हो गया, महंगा हो गया। तो इस तरह से हम आप समझ सकते हैं कि व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेज। पहले डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू आप देख सकते हैं कम थी, इसीलिए $1 खर्च करके हमको ज़्यादा डोमेस्टिक करेंसी मिलती थी। डोमेस्टिक करेंसी सस्ती थी। नाउ डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई, महंगी हो गई। इसीलिए सेम क्वांटिटी खर्च करके डॉलर की या सेम अमाउंट खर्च करके वी आर एबल टू परचेज लेस क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी,
तो आप क्या बताएंगे? इफ़ देर इज़ डिक्रीज इन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ, सॉरी, यदि आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो आप क्या बोलेंगे इस केस में? इफ़ there is decrease in the determinants of demand of foreign exchange, then there will be decrease in demand of foreign exchange, and because of this there will be decrease in foreign exchange rate, and because of this there will be increase in the value of domestic currency, which will be known as appreciation of domestic currency. So if the value of domestic currency is increasing because of decrease in demand of foreign exchange की डिमांड चेंज होने के कारण डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो इसको बोला जाता है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ओके, तो ये जो दो चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ा, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये दोनों किस एक्सचेंज रेट सिस्टम में हो रहे हैं? फिक्स्ड में या फ्लैक्सिबल में? ये दोनों किसके एग्जांपल हैं? दोनों में एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन किससे हो रहा है? डिमांड से हो रहा है। और जो भी एक्सचेंज रेट सिस्टम में फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन डिमांड के बेसिस पे होता है, उसे बोलते हैं फ्लैक्सिबल। अभी डेफिनेशन बताया, इट इज़ दैट एक्सचेंज रेट सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड के बेसिस पे हो रहा है, इसीलिए एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो कोई भी बोलता है कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये किस तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम्स के एग्जाम्पल्स हैं, तो आप बताएंगे इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया आपको कि फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में वैल्यूज़ ऑफ फॉरेन करेंसीज आर डिटरमाइंड नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या फॉरेन करेंसी के सप्लाई के बेसिस पे भी डिटरमाइन होती है। मतलब यदि फॉरेन करेंसी है कोई, जैसे डॉलर है, यदि इसकी सप्लाई जो है, डॉलर की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, तो जैसे अदर कमोडिटीज़ की सप्लाई इंक्रीज़ होने पर उनका प्राइस क्या होता है? डिक्रीज़, सस्ते हो जाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि यदि मार्केट में कोई वेजिटेबल की ओवर सप्लाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल, बहुत वेंडर्स जो हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वेजिटेबल्स ला देते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसका प्राइस क्या करते हैं? डिक्रीज़ कर देते हैं। या इसका उल्टा, यदि किसी दिन कोई वेजिटेबल है मार्केट में, उसकी शॉर्टेज है, तो जो सेलर्स हैं उनको पता है कि जो बायर्स हैं उनको तो परचेज़ करना ही है, तो बायर्स को कम दाम पे नहीं देते, बल्कि जो सेलर्स होते हैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या करते हैं? इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रोडक्ट की मार्केट में शॉर्टेज है। तो जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है मतलब उसकी सप्लाई कम तो प्राइस ज़्यादा, और जब किसी चीज़ की ओवर सप्लाई होती है तो सप्लाई ज़्यादा मतलब प्राइस कम। ऐसे ही यदि फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज तो प्राइस डिक्रीज, इफ सप्लाई इज डिक्रीजिंग देन प्राइस विल इंक्रीज। सो इन दिस वे सप्लाई ऑल्सो changes, yeah, affects the supply of foreign currency also affects the price of foreign currency। अब क्वेश्चन ये है कि फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई होती है वो कैसे चेंज होती है? मतलब फॉरेन करेंसी की सप्लाई कभी इंक्रीज़ हो जाती है, कभी डिक्रीज़, वो क्यों होती है? मतलब हमको ये पढ़ना है व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन करेंसी, मतलब डॉलर की जो सप्लाई है, डॉलर की सप्लाई वो इंक्रीज़ होगी मार्केट में किसी दिन या डिक्रीज़ होगी, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये हमको देखना है। इन फैक्टर्स को बोलते हैं सोर्सेज आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पहला, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉरेन करेंसी या डॉलर की सप्लाई हमारे कंट्री में कैसे होती है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स एंड सर्विसेज हम किसी फॉरेन कंट्री जैसे यूएसए को हम गुड यदि बेचेंगे तो हमको पेमेंट यूएसए किस टर्म्स में करेगा? डॉलर। तो हमारे कंट्री में क्या आएगा? डॉलर की सप्लाई होगी। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, यदि फॉरेनर्स आर कमिंग टू इंडिया टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, दे विल कम विद फॉरेन करेंसी डॉलर। तो डॉलर की फिर से क्या होगी? सप्लाई। एरो अपनी तरफ हम बना रहे हैं क्योंकि सप्लाई हो रही है हमारी तरफ। बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, इफ अमेरिका इज बोरोइंग सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम यूएसए, यूएसए विल पे इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, डॉलर्स के टर्म्स में पेमेंट करेगा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के पास जाएगी, आरबीआई को दे देगी डॉलर और एक्सचेंज कर लेगी रुपीज़, रुपीज़ आरबीआई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल जाएगा। रिकवरी ऑफ लोन्स फ्रॉम अब्रॉड, if USA has taken loans from India and now USA is repaying this loan, means government of India is recovering that loan from abroad। मतलब foreigners are returning their loans, foreign borrowers are returning their loans to India, they will pay in terms of, because they are not having the Indian currency, they will pay in terms of their domestic currency, and their domestic currencies are
फॉरेन करेंसी फॉर अस, विजिट बाई फॉरेनर्स इन इंडिया। जो फॉरेनर्स हैं वो यदि इंडिया में आ रहे हैं तो किसके साथ आएंगे, फॉरेन करेंसी के साथ आएंगे। दे विल प्रोवाइड द फॉरेन करेंसी टू RBI एंड दे विल परचेज रुपीज़ एंड दे विल यूज़ रुपीज़ वाइल स्पेंडिंग देयर टाइम इन इंडिया। रेमिटेंसेज बाय इंडियन वर्कर्स इन अब्रॉड, जो इंडियन वर्कर्स है फॉरेन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, दे आर पेड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसीज़। और इंडिया में जब वो पैसा भेजते हैं तो फॉरेन करेंसीज़ को कहाँ भेजते हैं, इंडिया में भेजते हैं। और RBI में वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है रुपीज़ के टर्म्स में, उनके फैमिली मेम्बर्स रुपीज़ वहाँ पे एक्सचेंज करके पा लेते हैं। तो इस तरह से फॉरेन करेंसीज़ की सप्लाई के किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, रिकवरी ऑफ लोन्स फ्रॉम अब्रॉड, विजिट्स बाय फॉरेनर्स टू इंडिया एंड रेमिटेंसेज बाय इंडियन वर्कर्स इन अब्रॉड। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। अभी जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं इनमें और सप्लाई ऑफ डॉलर में डायरेक्ट रिलेशन होता है। मीन्स इफ दीज आर इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ डॉलर विल इंक्रीज, इफ दीज आर डिक्रीजिंग देन सप्लाई ऑफ डॉलर विल डिक्रीज। मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगा तो डॉलर की सप्लाई इंक्रीज होगी। इफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड इज इंक्रीजिंग देन सप्लाई ऑफ डॉलर विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। If borrowings from abroad is increasing, then supply of dollar will in India will increase, and if borrowings from abroad is decreasing, then supply of dollar in India will decrease. If recovery of loans from abroad is increasing, then supply of dollar in India will increase, and vice versa. If visit by foreigners to India is increasing, then supply of dollar in India will increase, and vice versa. If remittances by Indians working in abroad is increasing, then supply of dollar in India will increase, and vice versa. Is this clear? तो अब आपको ये समझना है कि इफ़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दिस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इफ देर इज इंक्रीज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी डॉलर, यदि डॉलर के सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उससे क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इससे डॉलर की सप्लाई इंडिया में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस इफ सप्लाई ऑफ डॉलर इज इंक्रीजिंग देन डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीन्स डॉलर का प्राइस इससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इफ देर इज डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट सो देर विल बी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और इसको बोलेंगे एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन demand or in this case supply of foreign currency, then this will be known as appreciation of domestic currency. तो appreciation of domestic currency दो कारणों से हो सकता है, because of increase in supply of foreign exchange तो भी appreciation होगा, और इससे पहले मैंने आपको बताया था if there is decrease in demand of foreign exchange, यदि foreign exchange की demand decrease होती है तो foreign exchange की value कम होगी, फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू कम होती है तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी। और इफ़ देर इज़ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी, देर विल बी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, means there will be decrease in foreign exchange rate, and in this case also increase in value of domestic currency and there will be appreciation. Next, इस केस में क्या होता है, प्रीवियस केस में this determinants of sorry in this case what happened, इस केस में ये हुआ था कि जो सप्लाई फॉरेन करेंसी के सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स डिक्रीज हुए थे, सॉरी इंक्रीज हुए थे, तो फॉरेन करेंसी की वैल्यू पे और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था ये हमने स्टडी करा था। मान लीजिए सिचुएशन इसकी अपोजिट है, द determinants of supply of foreign exchange these are decreasing, then what will happen, we'll see this. If there is decrease in the determinants of supply of foreign exchange, फॉरेन एक्सचेंज के जो डिटर्मिनेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स यदि डिक्रीज होते हैं तो ऑब्वियसली देर विल बी डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड बिकॉज ऑफ दिस देर विल बी इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, एंड इफ देर इज इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट देर विल बी अपोजिट चेंज इन द डोमेस्टिक फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विच विल बी नोन एज डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मतलब यदि डिटर्मिनेंट्स, if determinants of supply of dollar मतलब foreign currency, if these determinants are decreasing then supply of
dollar will decrease. If supply of dollar is increasing, then decreasing, then what will happen? Price of dollar will increase. It means foreign exchange rate will increase, and if foreign exchange rate is decreasing, then the price of rupees, which is domestic currency, will decrease, and this will be known as depreciation of domestic currency. Okay, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. दो टर्म्स होते हैं, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना होता है. डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अभी हमने पढ़ा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बिकॉज ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई में चेंज होने के कारण डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में यदि डिक्रीज होता है तो इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. और डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इसमें भी यही होता है, decrease in the value of domestic currency means like depreciation of domestic currency. In case of devaluation of domestic currency also there is decrease in the value of domestic currency. यहाँ पे domestic currency की value decrease होगी, चाहे devaluation हो या depreciation, दोनों किसको बताते हैं? decrease को. लेकिन depreciation के केस में domestic currency की value में decrease होगा because of change in demand and supply of foreign currency. And devaluation of domestic currency के केस में there will be decrease in the value of domestic currency by government or बाई गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी अपॉइंटेड बाई गवर्नमेंट. यहाँ फॉर जो हो गया है और है ये, और एनी अथॉरिटी अपॉइंटेड बाई गवर्नमेंट. मतलब डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होती है, नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बट बाई गवर्नमेंट इट सेल्फ. द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज बीइंग चेंज्ड और बाई एनी अदर अथॉरिटी अपॉइंटेड बाई गवर्नमेंट. लाइक इन आवर कंट्री, इफ फॉरेन exchange value of domestic currency is being decreased by RBI, then this will be known as devaluation of domestic currency. If in our country the value of rupee is decreasing not by RBI but is being decreased not by RBI but it is decreasing because of change in demand and supply of foreign currency, this will be known as depreciation of domestic currency. Is this clear? Next thing is डेप्रिसिएशन अकर्स इन फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. ऑब्वियसली ये फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हो रहा है. क्यों? क्योंकि इसमें डिमांड और सप्लाई चेंज हो रहे हैं फॉरेन करेंसी के. ऐसा सिस्टम जिसमें फॉरेन करेंसी का डिमांड और सप्लाई चेंज होता है और उसके कारण करेंसीज की वैल्यू डिटरमाइन होती है, दैट इज़ नोन एज फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में अभी मैंने आपको दिखाया था डिमांड और सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स, जो फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड और सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स में चेंज होने के कारण फॉरेन करेंसीज की वैल्यू में कैसे चेंज आता है और उसके कारण डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में जो चेंज होता है उसको एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन बोलते हैं. तो वो फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में ऐसा होता है. और यदि गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को चेंज कर रही है या करेंसी की वैल्यू का डिटर्मिनेशन बाय गवर्नमेंट जिस सिस्टम में होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, दैट सिस्टम इज नोन एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. सो डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, दिस अकर्स इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. Is this clear? Now appreciation of domestic currency and revaluation of domestic currency. Appreciation अभी हमने पढ़ा, it refers to increase in the value of domestic currency because of change in demand and supply of foreign currency. यदि foreign currency की demand और supply में ऐसा change होता है जिसके कारण domestic currency की value increase हो जाती है तो इसको बोलेंगे appreciation. और revaluation of domestic currency, इस केस में भी there is increase in the value of domestic currency. appreciation में भी domestic currency की value increase होती है, रिवैल्यूएशन में भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है बट इट इज़ इंक्रीज्ड बाय गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट. यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में जो भी इंक्रीज होता है दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बट दिस इज़ बीइंग चेंज्ड बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, एनी अदर इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय गवर्नमेंट. ये होता है रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन गवर्नमेंट जानबूझ के करती है और एप्रिसिएशन में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. देयर इज़ नो रूल ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पे रूल ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे रूल ऑफ गवर्नमेंट हो जाता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं जहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे करेंसीज की वैल्यूज़ इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं. दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज़ नोन एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. इज दिस क्लियर? So this is all about this chapter. Thank you.